Hi, I am Hardik, going under the social media alias Haichu, because half the time I pretend to be high and act like a total chew. So I recently decided to follow up on my long lost dream of starting a motovlogging channel, and this was my best friend's reaction when I showed him the newly bought action camera. जाइए अपने डिस्कवर पे, आपका जो भी गाड़ी है उसमें बैठिए, हेलमेट के ऊपर लगाइए, इसको व्लॉगिंग चालू कर दीजिए। At least the bike is still running. Okay, the fuel is quite down. I need to get refueled first, and यार हवा चेक करानी है, PUC करानी है. I should have done all that last night. The bike is very dirty right now. I know I should have cleaned it, but I'm a lazy bum. Still running on hopes and dreams. भाई बस पहुंचा दो यार पेट्रोल पंप तक, तेल ना ख़त्म करना रास्ते में. Thankfully I'm at the pump, almost on time. और यहाँ पे कोई भीड़ भी ज़्यादा नहीं है तो गुड शिट. All right, so I'll quickly fill up my tank. फिर टायर में हवा भरवा के I'll get a new PUC certificate and get the hell out of here as soon as I can. So at least the traffic is moving. I'm not stuck at one place. Well, people still are heading to office, and since tomorrow is Holi, a lot of folks will be leaving for their hometowns today. So, yeah, I might get traffic. A lot, in fact. Let me reach Dholaguma. I'll take a break there. थोड़ा पानी पियेंगे. And do people really think हॉर्न बजाने से सामने वाला उड़ जाएगा? भाई जगह होगी तो निकाल लेगा ना. तुम्हारे हॉर्न बजाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ नॉइज़ पोल्यूशन होता है. यार मेरा हेलमेट थोड़ा सा चुभ रहा है मुझे अंदर. इट्स लाइक मेरे सर के ऊपर एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है. ओके, आई नीड टू टेक अ स्टॉप एंड maybe adjust it a little bit. स्नग फिट होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा बॉर्डर लाइन अनकम्फर्टेबल है. ओ महाराज, भाई लोग कुछ भी करते हैं यार इधर. रैंडम बुलशिट गो ब्रर. ओके, मेरे को थोड़ा खींचना पड़ेगा अभी अगर टाइम से सोनीपत तक पहुंचना है. मूलसर में ब्रेक लेना है. यार हैव सम फूड देयर. एंड दिल्ली ट्रैफिक इज प्योर chaos यार. In fact, not just Delhi. Anywhere in India, traffic is pure chaos. मतलब इतने टाइट स्पेस के बीच में से निकालने में आई एम स्टिल नॉट वेरी कंफर्टेबल, स्पेशली इन दिस बाइक जिसका पिकअप इतना ज़्यादा नहीं है. और मुझे पता है मैं स्टक हो सकता हूँ. जैसे जैसे बात कर रहा हूँ, आई एम रियलाइजिंग I really need to see this off and get a new one. Not a need at this point, it's a want. And it's a want something I wanted for a long time. बहुत 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 सोच विचार के बाद फाइनली डिसाइड किया है कि क्या ले रहा हूँ. I'll show you guys in the next video. थोड़ा मेंटल मैथ तो करना पड़ता है. मेंटल मैथ नहीं, मेंटल जिम्नास्टिक्स करना पड़ता है to figure out कहाँ से निकाली जा सकती है बाइक. To use some braking into the gear. Now I'm way more comfortable than I was earlier. Nice. Let it rip.
एंड दिस इज़ द रीज़न वाई आई नीड अ न्यू बाइक। नहीं होती भाई क्रूजिंग इस पे, हाईवे क्रूजिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑन दिस, टूरिंग तो नहीं हो पाएगी। इतनी स्पीड पे आराम से क्रूज़ किया मैंने, 90 तक तो आराम से मैं क्रूज़ कर लेता था इस पे। नॉट वेरी कंफर्टेबल, नॉट एट ऑल कंफर्टेबल, बहुत वाइब्रेशंस होती हैं, बट डूएबल। एंड बाय डूएबल आई मीन मैं कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अब 10 साल से बाइक चला रहा हूँ। मुझे पता है कि भाई इसमें कितनी जान है, कब कहाँ कैसे निकालनी है। I would not recommend you guys to do this, especially if you are a new rider or you're not that familiar with your bike or don't have that much confidence. So just wrapped up a much needed break here. मस्त 2 पराठे खाए, साथ में चाय पी, फिर थोड़ी देर लैपटॉप खोल के ऑफिस का काम किया. And in the end, I also had a Red Bull before leaving because I was feeling a little drowsy and really don't want to fall asleep while I'm riding the bike. बस भाई टू व्हीलर की ये बात मुझे बहुत सही लगती है. At most places you don't have to stop in a line and waste your time. You can just get away. But then there are some places जहाँ बाइक का भी टोल लगता है, like expressways. वहाँ legit भी है. I mean, at least they are allowing bikes on expressway. That's a big win. There are some signs in the Jaipur highway that goes through Gurgaon, जहाँ पे बाइक, ऑटो रिक्शा, बाइसिकल्स वो सब फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चढ़ सकते. दे हैव टू बी ऑन द सर्विस लेन. थैंक गॉड वो रूल अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं होता, नहीं तो भाई जीना आराम हो जाता कम्यूटिंग में मेरा. तो ये एक्शन कैम तो मैंने ऑलरेडी मंगा लिया था 1-2 हफ्ते पहले ही. हफ्ते का है मेरे पास. आई बिन ट्राइंग सम फुटेज एंड देन कमिंग टू द अदर गियर फॉर द pads and everything and gloves. By the way, I'm wearing knee pads, elbow pads, as well as gloves and a proper helmet, Exorca. Yeah, and all of the gear I have, including the mic and camera and everything from top to bottom, has been ordered from Amazon. I was not planning to get the helmet online because मेरे को ऑफलाइन जाके साइज़ ट्राई करने थे कि एग्जैक्टली क्या फिट आएगा. बिकॉज ऑनलाइन में दे गिव यू एन आइडिया, लाइक अपने हेड का सर्कमफ्रेंस मेजर करो, बट उससे यू नो वो फील नहीं आती. एंड देयर वाज आल्सो दिस थिंग दैट आई ऑलरेडी हैड द J mount ready before getting the helmet, and so I wanted to make sure that whatever helmet I buy has a place to properly accommodate the J mount without blocking the vent or anything. The offline store was quoting me more than 5K for the XR helmets, and I saw on Amazon I was getting it around 4300-4400 depending upon the color variant. So कितना 500-600 रुपये का ही फ़र्क था, बहुत ज़्यादा नहीं था. बट वही मैंने उसको बोला ऑफलाइन स्टोर वाले को कि यार इफ़ यू कैन मैच द प्राइस ऑफ द अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट, आई कैन जस्ट गेट द सेम हेलमेट फ्रॉम यू ओनली. मतलब उसने सीधा रिफ्यूज़ भी नहीं किया. ही वॉज वेरी रूड अबाउट इट कि हाँ मंगा लो ऑनलाइन, पिन लॉक नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, फिर रिटर्न करके रोते हुए मेरे पास ही वापस आओगे. एंड आई गॉट ऑफेंडेड, सो आई वॉकड अवे फ्रॉम दैट स्टोर एंड ऑर्डर्ड द एक्सॉर हेलमेट फ्रॉम Amazon. एंड देन मैं अपनी फ्लैटमेट की हंटर लिया रात को, 1-1.25 घंटा उसको राइड करके आया. फिर पता नहीं रात को मैंने 2 या 3 बजे तक उसकी फुटेज रिव्यू की. इतना अच्छा नहीं रहा रिज़ल्ट, और कैमरा एंगल पे भी थोड़ी बीटी थी कि आई वॉज नॉट सीइंग ऑल द वे अप. डाउन बहुत आ रहा था, लाइक मीटर दिख रहा था, कंसोल दिख रहा था, एनालॉग दिख रहा था, एंड देन रोड का बस थोड़ा सा पार्ट. क्योंकि ये जो J माउंट है, इट्स नॉट इन अ पोजीशन कि कैमरा थोड़ा सा ऊपर हो. सो आई एम प्लानिंग टू गेट अ आर्म एक्सटेंडर फॉर दिस, जिससे कैमरा की हाइट थोड़ी सी ऊपर होगी. एंड आई गेस
अभी भी अगर आप लोगों को ये व्यू ज़्यादा दिख रहा है और रोड कम दिख रहा है तो दैट विल चेंज. आई कैन फील द वाइब्रेशंस थ्रू आउट माई बॉडी. इस स्पीड पे इस हाईवे पे क्रूज़ किया भी है मैंने 90 to 100 पे, विच इज़ टोटली लीगल ऑन दिस रोड टू डू बिकॉज यहाँ की मैक्सिमम स्पीड 100 ही है स्पीड लिमिट. बट इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता था. बहुत प्यार से हो रहा है. एंड देन देयर वाज आल्सो अ बिग बर्डन ऑन माई शोल्डर्स एवरी टाइम बिकॉज मैं कभी लगेज टाई डाउन नहीं करता था. दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं प्रॉपरली लगेज पीछे रोप्स लेके माउंट करके आ रहा हूँ. एवरी टाइम आई यूज टू कैरी ट्रैकिंग वाला रक्सैक काइंड ऑफ बैग, और वो बड़ा सा बैग भर के मैं अपने कंधे पे टांग के ले जाता. ट्रिप के एंड तक मेरी कमर की और कंधों की बैंड बच जाती थी. दिस इज़ मोर और लेस अ वेरी comfortable ride compared to the other experiences I've had so far. Riding gear makes a lot of difference, I've seen. Even though I'm wearing minimal amount of gear, भाई क्या ही पहने, पैड्स, ग्लव्स और हेलमेट, that's it. फ़र्क पड़ता है गियर से, आपके कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क पड़ता है. आई एम रियली क्लोज टू माई हाउस. बस पहुँच ही गया. 15-20 मिनट और. So I'm not sure what we are going to do with this bike. We'll probably sell it. ये by the way मेरे पापा के नाम पे है. Although पापा ने कभी चलाई नहीं है ये. I think 10 साल में उन्होंने 2 बार चलाई होगी ये बाइक. ज़्यादातर चलाई मैंने और मेरे छोटे भाई ने ही है. So when I told my family that I'm getting a new bike, they were quite against it. और फिर जब प्राइस सुना भाई पागल ही हो गए कि क्या गधा है क्या, पागल है क्या, इतनी महंगी बाइक कौन लेता. कार ले लो, इतने में तो कार की डाउन पेमेंट हो जाएगी. भाई तुम क्या कर रहा है, गर्मी में धक्के खाएगा ये वो. अब कौन समझाए उन्हें भाई कि ख्वाहिशें भी कुछ होती हैं. प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से आई नो इट टोटली मेक सेंस टू गेट अ कार, बट ख्वाहिशें भी तो कुछ होती हैं ना. इतने टाइम से मेरा सपना था टू गेट अ प्रॉपर बिग बाइक, गो ऑन लॉन्ग राइड्स विद दैट. आई बीन वांटिंग टू डू दैट सिंस आई वाज इन स्कूल. और ये आ गया मेरा प्यारा घरोंडा. आई शुड मे बी स्लो डाउन एंड बी अ लिटिल एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज ऑफ folks like these who will go on the wrong side all the way. Pew 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 pew. I mean, I don't like honking a lot, but the thing is यहाँ करना पड़ता है. लोग भाई ऐसे चलाते हैं बाइक यहाँ पे जैसे कोई सेंस नहीं है. प्योर केओस है भाई, द प्योर केओस. तो यहाँ हटाने के लिए सड़क से बजाना पड़ेगा हॉर्न बिकॉज अदरवाइज पीपल विल नॉट मूव एंड yeah, you'll be effed up. I am here. Ta-da.